Welcome to the first part of the video series. We are discussing the chapter motion. This is for class 9th. We see different bodies around us in our daily life which are in motion or which are at rest. We see numerous examples like a moving car or a rotating fan or flowing water. There are many things which are in motion. Also the universe, like the planets which revolve around the sun, all are said to be in motion. On the other hand, we also see different objects which are at rest, like a chair kept on the floor, a rabbit sitting on the ground, though it does not look like a rabbit, or a man sleeping on his bed. All are said to be at rest. Now we are going to define what is a motion. Suppose we have a car on this road and it is moving in this direction from point A towards point B, and suppose this is a clock. Okay, so what will we see? We notice that this car is changing its position with respect to time. So we can define motion if a body changes its position with respect to time. It is said to be in motion. अगर कोई गाड़ी या कोई भी बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ अगर अपना पोजीशन को चेंज करे, जैसे कि लाइक दिस व्हीकल started from point A and it has reached point B with respect to time. So we will say that this body is in motion because it is changing its position with respect to time. Now suppose that this girl is sitting on a jhula. What will happen? She is changing her position with respect to time. She is moving to and fro. But जब वो झूले से गिर जाती है, then she is at rest. अब वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, वो बेहोश हो गई है. जब तक ये लोग उसको उठाकर ले जाते हैं, we will define what is rest. Rest can be defined as if a body does not change its position with respect to time. अगर कोई बॉडी समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो उसे कहा जाएगा कि वो रेस्ट पे है. Now we are going to discuss the different types of motion. The first one is rectilinear motion. इसमें क्या होता है? The body will travel in a straight line. It is the most simplest form of motion. इसमें क्या होगा कि एक रास्ता पे कोई भी व्हीकल या कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन विदाउट टेकिंग टर्न्स. लाइक व्हेन यू आर ड्राइविंग योर साइकिल ऑन ए स्ट्रेट, it is said to be a rectilinear motion. The second one is circular motion. For example, a satellite moving around the earth is an example of circular motion. In such type of motion, the body revolves around the circumference of a circle. Like this. It is moving on the circumference of this circle. For example, the tip of the blades of the fan are also in circular motion. If we see this point A, it is moving in a circle. अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेशन. ऑसिलेटरी मीन्स टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन. जैसे ये एक मार्कर है, ये अगर ऐसे से मोशन करे
means to and fro like a pendulum or a swing jhula, then such type of motion is called oscillatory motion. For example, pendulum. पेंडुलम क्या करता है, एक बार जाता है एक बार आता है. दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज कॉल्ड बॉब. ठीक है, पेंडुलम का जो तार होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग एंड दिस मेटेलिक पार्ट इज कॉल्ड बॉब. सो द मोशन ऑफ पेंडुलम इज टू एंड फ्रो, मीन्स ये एक बार आता है एक बार जाता है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज अ गिटार. द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, अगर इसको हम प्लग कर दें, गिटार को ऐसे जब बजाते हैं टिंग, तो इसका जो वायर्स है वो क्या होता है, ऐसे से वाइब्रेट करना शुरू होता है. सो द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. सो वी कैन से दैट द स्ट्रिंग्स आर इन ऑसिलेटरी मोशन. अच्छा, सपोज करो कि ये ड्रम है, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टिक. व्हेन यू हिट द ड्रम विथ अ स्टिक, the skin of the drum vibrates. The skin of the drum vibrates. So the skin is said to be in oscillatory motion. अच्छा, जब आप चल रहे हो तो चलते वक्त जो आपका पैर है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में है. गौर से देखो, इसका जो एक पैर होगा वो एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे आएगा, ऐसे से. सो द लेग्स while walking or running, the legs are in oscillatory motion, है ना. नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन. rotational motion. See, rotational motion is when a body rotates along its axis. इसके बीचों बीच अगर एक इमेजिनरी सपोज करो बीचों बीच एक लाइन है और ये अपनी जगह पे रोटेट कर रहा हो, ऐसे से घूम रहा हो, तो इसको कहेंगे रोटेशनल. रोटेशनल और सर्कुलर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है. ध्यान से देखो, एग्जांपल से दिखाते हैं. सपोज दिस इज अ व्हील, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको सर्कुलर कहेंगे या रोटेशनल कहेंगे. अब देखो, अगर यही व्हील ऐसे मूव करता तो इसको क्या कहते हैं. देखो, जब ये ऐसे मूव कर रहा है मीन्स ये एक सर्कल का सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है. ये दिस इज सर्कुलर मोशन. लेकिन ये अगर अपने जगह पे ऐसे रोटेट कर रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा है, ठीक है, अपने एक एक्सिस पे, इसका एक्सिस कौन है, ये, ठीक है, बीचों बीच एक लाइन, उसके अलोंग ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है. दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. तो एक एक्सिस के अलोंग अगर ये रोटेट कर रहा हो ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, नॉट सर्कुलर मोशन. लाइक व्हील्स, द व्हील्स ऑफ द कार, इट इज़ ऑल्सो इन रोटेशनल मोशन. अगर इस व्हील का अगर एक पॉइंट को ले लें, जैसे ये पॉइंट, उसको अगर आप देखें हम, तो वो एक सर्कल बना रहा है ना. ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर खास करके देखें तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है. तो कहा जाएगा कि ये जो पॉइंट है दिस इज इन सर्कुलर मोशन. बट पूरा अगर व्हील को देखें तो ये सर्कल नहीं बना रहा है, ये अपने जगह पे बस घूम रहा है ऐसे, तो इसको कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है. सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन. फ़ैन है, इसमें एक पॉइंट ले लिए हम एक्स. अब फ़ैन को भूल जाओ, सिर्फ अगर ये फ़ैन मूव कर रहा हो तो सिर्फ इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कैसा रास्ता पे चलेगा, ऐसा. जब फैन मूव करेगा देन द पॉइंट एक्स विल फॉलो दिस सर्कुलर पाथ, मीन्स इट विल फॉलो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज़ इन सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर पूरे पंखा को देखा जाए तो पंखा अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, पंखा ऐसे से नहीं घूम रहा है, ठीक है. इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. इसका एक्सिस कौन है, ये वाला बीचों बीच, ठीक है. इसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है ऐसे से, फैन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह पर. तो एज अ होल द फैन इज़ इन रोटेशनल मोशन, बट इफ़ वी सी सम पॉइंट्स ऑन द फैन then it is in circular motion. The points are in circular motion. Now we will recap what we have learnt. First one is rectilinear motion, that is motion along straight line like this. Second is circular motion, motion along circumference of circle like this. It is forming a circle. Third one is rotational motion, means motion along
around axis passing through the body, means like this. This is the axis and the body is moving. Next is oscillatory motion, a motion which is to and fro, like this. Now I am giving you some homeworks. You have to write down 5 examples of each type of motion that we have learned today. Write 5 examples of each type of motion, especially rotational and circular motions. Okay, so you should do this homework. I will come up with the next video next time. So thank you.